नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथम हेडलाइंस। संसद में 34 लाख कोटी बजेट उपस्थापन कले अर्थमंत्री। जरूरीकालीन पांठि 30,000 कोटी करदाता टिकस हार अपरिवर्तित। बजेट रे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजनार शुभारंभ। योजना 64,180 कोटी व्ययबराद। कोरोना समय अनेकों करिछि सहायता आत्मनिर्भर भारत। साधारण बजेट रे रेलवाई को 1,10,55 कोटी आवंटन। मेट्रो प्रोजेक्ट को दियाजिबो प्रोत्साहन। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी घोषणा। बजेट रे चाषी बड़ घोषणा। एमएसपी व्यवस्था हेबो बड़ परिवर्तन। 1.5 गुणा करने को प्रयास। चाषी आय 2 गुणा करने को लक्ष्य। बजेट रे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर बड़ घोषणा। देश में खोल 100 रु अधिक सैनिक स्कूल। आदिवासी अंचल में निर्माण हेबो 750 एकलव्य मॉडल स्कूल। कोरोना वैक्सीन 35,000 कोटी व्ययबराद। बजेट उपरे प्रधानमंत्री प्रतिक्रिया। कहले बजेट रो मूल सिद्धांत विकास पर नूतन सुजोग और नुआ संभावना सृष्टि करबा। जुगांतकारी बजेट कहले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ओडिशा को सिंहभाग मिलवा नहीं आशा व्यक्त कले। दायित्व नेले लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद महांती। भारतीय स्थलसेनार उपमुख्य भाव नेले दायित्व। प्रथम ओडिया भावे भारतीय सेनार उपमुख्य। कटक सन हॉस्पिटल भयावह अग्निकांड। हुतुहुतु जलिला मेडिकल बिल्डिंग। कारण अस्पष्ट। निया लिभाइबारे अग्निशम विभाग 5टी टीम मुतयन। गुरुतर रोगी को अन्यत्र स्थानांतर। संसद में उपस्थापित है कोरोना कालर प्रथम बजेट। 2021-22 आर्थिक वर्ष पर बजेट उपस्थापन करिसेंती केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। दुई 2021-22 आर्थिक वर्ष में 34.5 लाख कोटी व्यय अटकल कर। जरूरीकालीन पांठि 30,000 कोटी टंका रखा। 2020-21 आर्थिक वर्ष में वित्तीय नियंट 9.5% रही। 2021-22 वित्तीय नियंट 6.8% रहिबार अनुमान करा जाउछि। बजेट रे साधारण करदाता टिकस हार में कौन परिवर्तन करा जाय नाही। तेबे 75 वर्ष बयस अधिक वयस्क नागरिकों को आयकर छाड़ दिया जाइछे। सेमानकु आउ टैक्स दाखल करने को पड़िबो नाही। The preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. We knew of calamities that have affected a country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 through 2020 is sui generis. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined that the global economy, already in throes of a slowdown, would be pushed into an unprecedented contraction. We could not have also imagined then that our people, as those in other countries, would have to endure the loss of near and dear ones and suffer hardships brought about due to a health crisis. In part A, I wish to lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. We are already part of international groupings such as the G20 and the BRICS, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and the International Solar Alliance are realities today due to India's efforts. The proposals in Part A will further strengthen the Sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance,
opportunities for youth, education for all, women empowerment, and inclusive development, among others. Additionally, also on the path to fast implementation are the 13 promises we had made in the budget of 2015-16, which were to materialize during the Amrit Mahotsav of 2022 on the 75th year of our independence. They too resonate with the vision of Atmanirbharta. I now move to talking about health and well-being. Even at the outset, I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic to health, we focus on strengthening three areas: preventive, curative, and well-being. Health systems. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Yojana, launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary, and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions, and create new institutes to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. The main interventions under the scheme are support for over 17,000 rural and 11,000 health and well centers, setting up integrated public health labs in all districts, and 3,382 block public health units in 11 states, establishing critical care hospital blocks in 602 districts and 12 central institutions, strengthening of National Center for Disease Control, its 5 regional branches and 20 metropolitan health surveillance units, expansion of the integrated health information portal to all states and UTs to connect all public health labs, operationalization of 17 new public health units, and strengthening of 33 existing public health units at points of entry, that is, at 32 airports, 11 seaports, and 7 land crossings, setting up of 15 health emergency operations centers and 2 mobile hospitals, and setting up of a National Institution for One Health, a regional research platform for WHO, World Health Organization, Southeast Asia Region Office, 9 biosafety level 3 laboratories, and 4 regional national institutes for चाषी बजेट रे बड़ घोषणा। चाषी हित सरकार काम करुछंती। चाषी को 1.5 गुणा एमएसपी देवाकू प्रयास होउछे। एमएसपी व्यवस्था रे बड़ परिवर्तन हेबो। चाषी को 75,000 कोटी रु अधिक दियाजिबो। चाषी आय को 2 गुणा करने को लक्ष्य। FY21 गहम 75,060 कोटी, FY20 62,802 कोटी, FY21 धान किणवा 1,72,752 कोटी, 43,36,000 चाषी उपकृत होइछन्ते। 2022 सुधा चाषी आय द्विगुणित हेबो। चाषी को 16.5 लाख कोटी ऋण देवाकू लक्ष्य रखा जाइछे। संसद में चलित आर्थिक वर्षर बजेट आगत होगा पर यह प्रतिक्रिया रखिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कहते चलित वर्षर बजेट रे विकास विश्वास रही। आज बजेट भारतर आत्मविश्वास को उजागर करने सह दुनिया रे नुआ आत्मविश्वास भरिब। आज बजेट रे आत्मनिर्भरतार लक्ष्य सह प्रत्येक नागरिक एवं प्रत्येक वर्गर समागम रही। आज बजेट्र मूल सिद्धांत होउछि विकास पई नूतन सुजोग एवं नुआ संभावना सृष्टि करबा। युवक मानक पई नुआ सुजोग सृष्टि करबा, भित्तिभूमि निर्माण करबा पई नुआ क्षेत्र गुडी को विकसित कराइबा, आधुनिकता दिगरे आगो को बढ़िबा सह नुआ संस्कार आनिबा। एहा सहित नियम एवं प्रक्रिया को सरलीकरण करबा सह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाइबा पई अधिक जोर दिया जाइछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंते।
এই बजेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बहु सकारात्मक परिवर्तन आनिब बोली प्रधानमंत्री कहते। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो है ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। 2021-22 पूर्णांग बजेट उपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ति केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। आज बजेट को जुगांतकारी बजेट बोली कहिछन्ति केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कोरोना परे देशर अर्थनीति अग्रगति परिलक्षित होउछे। स्वास्थ्य सेवा, रेल, रास्ता, कृषि यार ढांचागत निर्माण हेब। समावेश विकास, विशेषकर आकांक्षी अंचल गुड़िक मानव सम्बल विकास सर्वोपरि सर्वनिम्न सरकार एवं सर्वाधिक सरकार तत्व आधार बजेट को उपस्थापन कराଯାଇଛି बोली केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिछन्ति। एहासह कोरोना उपरांत बजेट रे स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यापक व्यवस्था कराଯାଇଛି बोली केंद्र मंत्री कहिछन्ति। सेपरि पोषण अभियान रे ओडिशार 10टी जाक आकांक्षी जिला यार प्राथमिकता पाइबे। रोड, इकोनोमिक कॉरिडोर, नुआ रेल लाइन दोहरीकरण मध्य व्यवस्था रही। विजयवाड़ू खड़गपुर पर्यंत रेलवे प्लान अनुଯାयी इकोनोमिक कॉरिडोर योजना सामिल रही। ओडिशा एवं पूर्वोदय अंतर्गत स्टील क्लस्टर, पेट्रोलियम क्लस्टर, माइनिंग सेक्टर जहार संपर्क ओडिशा सहित रही द्वारा लाभवान हेबे बोली कहिसेंति केंद्र मंत्री। बजेट रे ओडिशा को सिंह भाग मिलियो बोली केंद्र मंत्री आशा व्यक्त करिसेंति। ए बजेट रे 1 कोटी नुआ उज्ज्वला योजना रे कनेक्शन पई सुयोग दिया जायछि बोली केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसेंति। बजट अभी की आवश्यकता स्वास्थ्य सबकी चिंता में है। इस बजट में हेल्थ सेक्टर को सबसे प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दिया है। दूसरी ओर अर्थनीति को दोबारा
एक गति देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है और उसमें से विशेष करके कृषि क्षेत्र की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को उन्होंने जोर दिया है। इसके कारण देश में अर्थनैतिक सर्कुलेशन होगी, देश की स्वास्थ्य के बारे में चिंता की जाएगी, शहरी इलाका में घर बनाना, नल में पानी पहुंचाना, ये सारे सेक्टर की उसमें से प्राथमिकता दी गई है। आदरणीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 2021-22 ପାଇଁ बजेट उपस्थापित पार्लियामेंट करले, देश सामने रखिले। ये अवसर में मु सर्वप्रथमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूची। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, अर्थ राष्ट्रमंत्री श्री अनुराग ठाकुर यांको भी मु धन्यवाद दूची। कोरोना उपरांते विश्वर अर्थनीति जेतेबेले अत्यंत खराब अवस्था रे अच्छी, से भलिया गोटे परिस्थिति रे अर्थनीति को एक नुआ दिग दबा पई आज बजेट अना जाइछि। ये बजेट बहुत प्रशंसनीय बजेट, अर्थनीति पुनर्बार पॉजिटिव इंडिकेशन देखैलानी। भी सेफ रिकवरी कथा चर्चा विशेषज्ञ मान आरंभ करिसंती। ये बजेट जदि दुई तीन मुख्य विषय को उल्लेख करा जाए, आमर ओडिशा संपर्क रे ताकू जोड़ी की देखा जाए। स्वास्थ्य सेवा, रेल रास्ता, कृषि यार ढांचागत निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, विशेष करके आकांक्षी अंचल गुड़िक मानव संबलर विकास, इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, सर्वोपरि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये तत्व आधार रे ये बजेट को उपस्थापित करा जायछि। ये कथा गुड़िक जदि स्थानीय सरकार ठीक से सहयोग करिकी क्रियान्वयन करेबे, भारत सरकार और राज्य सरकार उभय मिसिकी काम करिवे, ओडिशा रे हमरो कहा को बाहर को। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रतिक्रिया आसुछि केंद्रीय बजेट उपरे, सीधासलख नहीं चलुछु। 1938 में चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव एक सकारात्मक कदम है जो बहुत दिनों से चर्चा में था लेकिन किया नहीं गया था। उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उसमें परिवर्तन किया है। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश बैंकिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश माने जाने के बाद अब राज्यों को केंद्रीय करों का 30% से बढ़कर 41%, 41% उनको हिस्सा मिल सकेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले बजट से 30% अधिक है, 30% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों और स्वतंत्र बॉन्डेज यानी बॉन्ड्स भरने का भी उनको 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारे स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो उज्ज्वला योजना ने जो भारत में तस्वीर बदली है, 8 करोड़ बहनों को कनेक्शन मिला है, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को और ये गैस का कनेक्शन पहुंचाने का योजन इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए
1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसएमईज के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई है। छोटे कंपनियों की परिभाषा बदलकर इसके लिए पंजीकृत आधार में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है। यह इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो आवंटन किया जाता है उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन मंत्रालय के 1,18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अधिक लागत से स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। ये बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित होकर बजट ये हमारा 2021-22 का आया है। यह गरीबी, किसानों, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और राज्य के कोषीय घाटे को काफ़ी हद तक सीमा में रखने वाला, देश के आर्थिक गति को तेज करने वाला बजट है। मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि यह बजट देश को जो संक्रमण काल से निकल रहा है उसको एक नया इम्पेटस देगा, एक नई ताकत देगा, एक नए ऊर्जा के साथ आर्थिक जगत को आगे बढ़ाएगा और संपूर्ण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये अपना योगदान करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को आपको बधाई भी देता हूं और यह आगे परिवर्तन लाएगा, ऐसा मैं कहता हूं। धन्यवाद। पुआ लेफ्टिनेंट जनरल चंडीप्रसाद महांती आज सेनार उपमुख्य भाव दायित्व ग्रहण करेंगे। से देशर 42तम सेना उपमुख्य। से 1982 मसीह रेजिमेंटर द्वितीय लेफ्टिनेंट भाव महांती जोग देते। निजर 38 वर्षर क्यारियर मध्य पाकिस्तान और चीन सीमा सहित अनेक ऑपरेशन रे से आगधाड़ी रही गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिसेंति। एहा छड़ा नवादिल्ली सेना मुख्यालय रे लॉजिस्टिक और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट रे महानिर्देशक भाव से नियुक्त होइथिले। कटक तुलसीपुर एक हस्पिटाल बड़ धरणर अग्निकांड। तुलसीपुर सन हस्पिटाल अग्निकांड घटी जनापड़ी। सन हस्पिटाल चतुर्थ महलार कैंटीन में निआं लगी सूचना मिलता। सर्ट सर्किट जो निआं लगी सन्देह करा प्राय 5टी अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची निआं को आयत्त कर। घटनास्थल में जिलापाल, डीसीपी, सीएमसी कमिशनर प्रमुख पहुंची स्थिति तदारख कर। अनेपटे क्षयक्षतिर आकलन करा गुरुतर रोगी को अन्यत्र स्थानांतर करा एससीबी सह अन्य मेडिकल को स्थानांतर होइछन्ति गुरुतर रोगी। न्याय पाई महिलांक गुहारी। भद्रक चांदबाली एनएसी पांचपड़ारे जड़े दलित दंपति तांकर 5 वर्षर शिशु को धरी चांदबाली उपखंड पुलिस एसपी ऑफिस सम्मुख में धारणा देइछन्ति। जमीजमा विवाद को नहीं रमेश दास और सुभाष दास का परिवार मध्य झगड़ा होता, जहां नहीं रमेश दास का परिवार सुभाष का परिवार को आक्रमण करते। एने सुभाष का परिवार लोके चांदबाली थाना रे अभियोग करने पर रमेश दास का परिवार लोके तांको धमक चमक दौरान।
जहाकु नहीं चांदबाली एसडीपीओ निकट में गुहारी जणाइछन्ति सुभाष और तांका परिवार। जे मत मारी 3 तारीख दिन दरखास्त लिखी देथिनी थाना को एपर्यंत मोर किसी बुझा बुझी हेलानी तापर से मत मारी दबा को राति धमक फमक दौरान मो स्वामी हो हेल्पर काम करे से बाहर को जाऊँ मत बाहर डर मांडू काले कुआड़े मारी मुरी पके तापर मो छोट छोट छुआ दीटा मत सुरक्षा विषय रखु मत भारी डर मांडू समस्त मत मिसिक धमक दौरान राति मारी दबा ये करने। पारिवारिक कलहर करुण परिणति स्वामी स्त्री झगड़ा जोगु स्त्रीर बेक काटिला स्वामी एभली अभावन घटना घटी मालकानगिरी जिला कालीमेला ब्लॉक एमपी 72 गाँवर शांतिनगर में स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा होता। स्वामी प्रतिदिन मद पी घर को आसवा कारण उभयों मध्य झगड़ा होता। तेबे गतकाली उभयों मध्य झगड़ा होता और स्वामी उत्क्षिप्त हो स्त्रीर बेक काटी फल घटनास्थल ही स्त्रीर मृत्यु होती। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची स्वामी को गिरफ्त करने सहित तदंत आरंभ करिछि। केन्द्रापड़ा आरटीआई कर्मी रंजन दास हत्या घटना को वर्षे पूरी किंतु एबे जाए अभियुक्त मानक गिरफ्त करनी पुलिस। रंजन दास को मृत्युर प्रथम श्राद्धवार्षिक सूचना अधिकार कर्मी माने तांका परिवार लोकों को समवेदना जणाइबा सह अन्याय विरुद्ध में लड़े जारी रखा आह्वान देइछन्ति। केन्द्रापड़ा विभिन्न दुर्नीति पर्दाफाश करने जोगु राजनेता आक्रोशर शिकार होते रंजन दास गत फेब्रुआरी 1 तारिख में मार्साघाई थाना बेरुहा ग्राम एक निछाटिया रास्ता कड़े हत्या करा जायथिला। परवर्ती खबर आसुछि खोर्धारू। खोर्धा जिला टांगी वनांचल अधीनस्थ टांकोल वृद्ध को दलिदेला दंता। मृतक जनक टांकोल गाँवर बाउरी बंधु स्वाई निज चाष जमी को मुग जगिबा जाइथिबा बेले से हाथी आक्रमणर शिकार होते। अनेक दिन है स्थानीय अंचल में दंता हाथी आतंक खेलाइथिबा बेले स्थानीय वन विभाग कौनसी पदक्षेप नेउनथिबा लोके अभियोग करिसेंते। तेबे घटनास्थल में वन विभाग कौनसी अधिकारी पहुंची नथिबा जଣା पड़िछि। समस्त रही बुलेटिन के रखुछु। नमस्कार।